So hi guys, welcome back to my channel Commerce with Artist Guinness. So in this video I will discuss about auditing and ethics, that how you can score exemption in this subject and how I improved, how I got from 19 to 56 marks तक का मेरा क्या सफ़र था. Okay, but I scored 56 marks in this paper in May 2024, and in November 2023 I scored, tell you correctly, I got 19 marks in this paper. I got 19 marks. As you can see here, from 70 I got only 5 marks, and from 70 here I got 30 marks. So you can see this is the huge difference in only in 6 months. But as my articleship was going on, I only studied for 10 days in for audit. सो मैं अपनी गलतियाँ, अपनी आंसर शीट और स्ट्रेटेजी सब कुछ ऑनेस्टली बताऊंगी इस वीडियो में. अगर आप CA स्टूडेंट हो, CMA स्टूडेंट हो, तो आपके लिए आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है. सो आई होप यू विल गेट इट दैट ये आंसर शीट CMA स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू गेट एन आइडिया ऑफ CA आंसर शीट्स और CA इंटर, CA फाइनल, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. बट एज माई ऑडियंस इज ऑफ CMA, so I think CMA students can avoid, but you can also get an idea that how to present your answers. I hope you will get an idea. So ये मेरी answer sheet है. As you can see, in total I got 30 marks from 70. In total I got 56 marks, but I got 24 marks in MCQs. 2 marks I got grace marking. Earlier in last attempt I got 19 marks in audit only. Okay, so I think ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो सोचते हैं कि हमें लिखना नहीं आता, हमारे कभी आएंगे ही नहीं. कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सो नथिंग लाइक दैट. मैं भी आप जैसी ही हूँ, मेरे भी 19 मार्क्स आए थे, बट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 56 मार्क्स. येस, सो लेट्स स्टार्ट विद माई आंसर शीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अटेंडेड पार्ट नंबर 2, सेकेंड का A पार्ट. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हाँ आंसर्स, टीचर्स बताते हैं कि हाँ आंसर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अटेंड करो. सो नथिंग लाइक दैट, यू कैन अटेंड एज पर योर चॉइस. जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आता है आप वो क्वेश्चन. सो एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी. आई विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑल्सो हेयर. फर्स्ट क्वेश्चन आई लेफ्ट, आई डोंट नो व्हाई. So this is the question, CAQ. I didn't read all this in the paper also. I just read this, that what kind of information. First of all, I always read the last line in the question. What kind of information can the auditor get by inquiring from the following internal? I think this is very easy. If you have studied audit, then you know this. Even now though I also don't know, because it's been a long time that I have studied this. So yes, they have asked internal audit personnel, in-house legal. I think you know all this. So in this I just give internal audit personnel. Auditor can get the information from internal audit personnel. मैंने as you can see, मैंने कुछ भी इसमें बहुत यूनिक नहीं लिखा, कुछ भी डिफरेंट नहीं लिखा. First line is like from question only. Auditor can get the information from internal audit personnel regarding the governance structure of the entity, regarding risk of material misstatement, and like it is a common language. नथिंग कुछ कि हाँ हम बोल सकते हैं कि कुछ स्पेशल लिखा है, नथिंग लाइक दैट. येस, इन हाउस लीगल में भी ऑडिट कैन इंक्वायरी इन हाउस लीगल काउंसिल ऑफ द एंटिटी रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स. एज यू कैन सी, लीगल वर्ड से ही हमें पता लग जाता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स का. एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, दैट आई ओनली स्टडी फ्रॉम ICAI मॉड्यूल, CA मॉड्यूल. आई डिडंट रेफर एनी अदर टीचर बुक. Marketing or audit can inquire the marketing or sales personnel. You can see I just expand these 2-3 lines from the question only, so that थोड़ा लेंथी लगे और एग्जामिनर मार्क्स दे. और सो ये सेकंड का A था, ये 4 नंबर का था और मुझे इसमें 4 ही मिले हैं. देन आई अटेंडेड सेकंड का B. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें पहले क्वेश्चन देख लेना चाहिए. सेकंड के B में CAZ, the auditor of MNO, list out the inclusions of letter of specific inquiry. They are certain circumstances the auditor may judge it necessary to meet the external legal counsel to discuss the likely outcome of the litigation. What will be the auditor's reporting responsibility? मेरे को अभी तो ये क्वेश्चन, इफ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को अभी तो ये क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट दे आर आस्किंग. मैं अपने पेपर में क्या करती हूँ, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ, जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में ये पता चल गया कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक तगड़ा सा वर्ड यूज हुआ है,
लिटिगेशन एंड क्लेम्स एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है. सो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एक वर्ड यूज़ हुआ है. ऑडिटर का सबको पता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. तो मैं क्या कर, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन कीवर्ड्स के बारे में हमें जो कुछ भी आता है आप वो लिख दो. लाइक आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स पता है, आप इनके बारे में इंडिविजुअली लिख दो. मतलब अगर आप ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम इसमें 4 में से 4 नहीं ले सकते, एटलीस्ट हम 1 नंबर तो ले पाएँ. एटलीस्ट हम अपना टोटल अपने 40 मार्क्स कैसे बनाने हैं, अपने 60 मार्क्स कैसे बनाने हैं. लाइक वी डोंट स्टक ऑन 59 और वी डोंट स्टक ऑन 39. सो एक एक नंबर करके पूरा घड़ा भर जाता है. सी व्हाट आई हैव ब्रॉट. In case of risk of material statement regarding involving the company, auditor can ask the management explanation regarding this. मतलब वही सेम लाइन को मैंने दोबारा घुमाया हुआ है. इन केस ऑफ रिस्क ऑफ, मेरे को अभी तो ये क्वेश्चन नहीं आता, बट आई थिंक मेरे को तब भी नहीं आता होगा. अभी तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो मैं क्यों आपको मिसगाइड करूँ. तो ऑनेस्टली मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेटस. तो मैं जस्ट एक ट्रिक बता रही हूँ आपको कि हाँ लाइक ये देखो, अब मैंने सेम वही लाइन को, क्वेश्चन को ही बार बार घुमाया है. इंक्लूजन इन लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी कम्युनिकेट. ओके, दे आर आस्किंग अबाउट लेटर. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम्स ऑन द if the management refuses to give permission to the auditor to communicate or meet with external, the auditor should ask for reasons. Auditor can modify the opinion in accordance SA 705. आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये ठीक लिखा है. ऐसे 705 यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन ऑल आई हैव रिटन. एंड इन दिस क्वेश्चन आई हैव गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 4. आई हैव गॉट 2 मार्क्स. आप बता सकते हो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. यू कैन ऑल्सो गाइड मी. सो नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड सेकेंड का सी पार्ट. इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग about list down the factors inherent limitations due to which auditor can't provide a guarantee that the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error. आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि मेरे अटेम्प्ट में ऑडिट का पेपर बहुत इजी था, बट हम जिस पेपर के लिए प्रिपेयर करके गए थे, हम सोच के गए थे कि कुछ डिफ़िकल्ट आएगा, बट द पेपर वॉज सो ईजी दैट हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि लिखना क्या है. आई होप यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है, तो मेरा क्या था, मैं पेपर के आई विल टेल यू कि हाँ कुछ क्वेश्चंस आरटीपी और एमटीपी में भी रिपीट थे. लाइक मैं पेपर वाली सुबह, लाइक हमारा पेपर 2 बजे शुरू होता है, मैं जस्ट 1 बजे और 11-12 बजे मैंने आरटीपी एंड एमटीपी करना शुरू किया था. एंड निधि कंपनी वाला क्वेश्चन है एक, और EQCR वाला क्वेश्चन है. द क्वेश्चन वर सिमिलरली, मतलब दे वर सिमिलर फ्रॉम आरटीपी एंड एमटीपी. मतलब क्वेश्चंस रिपीट हुए थे. सो मैंने वो पहले ही किए थे. लाइक 10-15 मिनट पेपर में अंदर जाने से पहले ही मैं वो क्वेश्चन रिवाइज करके गई थी. सो मेरे को कुछ याद था, तो मैंने वो लिख दिया. ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही काफ़ी स्टूडेंट को टेंशन हो जाती है. बहुत पढ़ने के बाद भी हमारे मार्क्स नहीं आते और समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है. मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ. सिर्फ 6 महीने पहले मुझे ऑडिट में सिर्फ 19 मार्क्स मिले थे. आई थिंक बहुत सारे बच्चे जिनके 19 मार्क्स आते हैं, इवन बिलो 30 आते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी नहीं करते कि हाँ मेरे 19 मार्क्स आए हैं. बट इट्स नथिंग लाइक दैट. मेरे अगले अटैम्प्ट में 56 मार्क्स आए हैं. यू नो एग्जामिशन तो नहीं आई, बट येस मैं उतना टाइम नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी और मुझे छुट्टी वगैरह की प्रॉब्लम थी और घर पे भी कुछ था, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाई थी. तो मैंने मैक्स टू मैक्स 10 दिन में, मतलब मैं 10 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ 5-10 दिन में अपना ऑडिट वाला सब्जेक्ट पेपरों में लास्ट डेज में प्रिपेयर किया था. यस, मैं बताऊंगी आपसे कि हाँ मेरी क्या गलतियाँ थी, मैंने क्या बदला. मेरी एक्चुअल ऑडिट की ये आंसर शीट है. मैं अपनी पुरानी आंसर शीट भी दिखाऊंगी जिसमें मेरे को सिर्फ 5 ही नंबर मिले हैं. यू कैन सी, लिखा मैंने इसमें भी है, बट you will see the huge difference. I will tell you. ऑडिट से बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि ऑडिट एक पूरा ही थ्योरी सब्जेक्ट है. इसको याद रखना बहुत मुश्किल है. स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं. समझ नहीं आता लिखना क्या है. सिर्फ पढ़ते हैं हम, लिखते नहीं हैं. एग्जाम में लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होती.
ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. आई थिंक ये क्वेश्चन फर्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशंस वाला है. ये फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. यस. सो ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव्स है. रीजनेबल एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, इन ड्यू टू विच ऑडिटर कांट प्रोवाइड अ गारंटी. लिमिटेशंस आर फ्यू. हियर आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन अबाउट nature of financial reporting. Nature of financial reporting is one of the major inherent limitation. What is this? Like मैंने लिखा क्या है? लिखा है nature of financial reporting is one of the major inherent limitation. क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आंसर को लिखने का तरीका मतलब बस लंबा करने के लिए मैंने उसमें लिख दिया. आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. कमेंट सेक्शन में बताना भाई. Practical and limited limitation है. Auditor can check or verify all the transaction is a practical limitation. Auditor didn't get the representation or sufficient audit evidence is limited limitation. मेरे को पता है मेरी प्रेजेंटेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है बट मेरी आंसर शीट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेरे जैसे ही हैं जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हमें मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ होती है. आई नो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, मेरी रिटन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है क्योंकि मैं रिटन प्रैक्टिस कर भी नहीं पाती हूँ. आई जस्ट ओनली रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन द सेम थिंग. सो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे. सो ये मेरी आंसर शीट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी रैंकर्स हैं, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आने हैं, एग्जामिशन आनी है, उनकी तो आनी ही आनी है. सो जो बच्चे नहीं स्कोर कर पाते हैं, डोंट लूज होप, डोंट गिव अप, यू कैन स्टार्ट. Audit is a reasonable assurance. Reasonable assurance is a high level of assurance but not an absolute assurance. These same lines I have written here also. मतलब बार बार वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं. Future uncertainty or events, auditor can't determine the future uncertainties or event which may be material. Auditor can't authenticate the documents. I think you will get an idea. ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का था तो मेरे को इसमें 3 में से 3 ही मिले हैं. ओके. नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अबाउट सेकंड का डी पार्ट. तो यू कैन सी क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना. बट वट आई हैव रिटन, आई डिडंट रिटन इन केस स्टडीज, आई हैव ओनली रिटन इन मैंने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए हैं. आई डोंट नो कि मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स क्यों दिए हैं बट अब जो लिखा हुआ है मैं आंसर शीट में तो वही दिखाऊंगी. ठीक है. ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि हाँ इस केस स्टडी में ये वाली बात हुई है बट हाँ इन लॉ हम लिखते हैं. अभी ऑडिट में आई डोंट हैव एनी आइडिया बट येस यू कैन राइट डाउन लाइक दैट. सो ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक केस स्टडीज. ये देखो आप इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है गिव एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट. सो प्रोफेशनल जजमेंट इंगेजमेंट टीम्स के एफर्ट पूछे हैं. आई थिंक ये चैप्टर 11 में से है क्या, आई डोंट नो. ऑडिट स्ट्रेटेजी आस्क द स्कोप. आई हैव रिटन हियर अबाउट ऑडिट स्ट्रेटेजी बट आई डोंट थिंक सो कि दे हैव आस्क्ड अबाउट ऑडिट स्ट्रेटेजी. फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल साइज ऑफ द एंटिटी. गलत है भाई, सब कुछ गलत है. सो आई हैव गॉट सेकेंड का डी में 0. आई विल सजेस्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट, ट्राई टू राइट इवन लाइक ट्राई टू राइट समथिंग. कुछ भी आ रहा है आपके माइंड में लिख दो, वो एग्जामिनर देखेगा कि उसने पास करना है या नहीं करना. मतलब आप अपनी तरफ से तो पूरा करो ना. नेक्स्ट मैंने थर्ड का ए अटेम्प्ट किया है, मैंने इसको काटा मारा हुआ है. थर्ड का बी भी मैंने कट किया हुआ है. फोर्थ का ए, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है. आई थिंक फोर्थ का ए काफ़ी इजी था. इन दे हैव आस्क्ड द स्पेसिफाइड आइटम्स. ओके. अभी ना मैं आपको इनमें ना स्पेसिफिक चैप्टर्स नहीं बता पाऊंगी बट येस ये अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट ये भी बहुत इजी था. लाइक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह वाला कुछ चैप्टर था ये. ऑडिट प्रोसीजर है और कि इसमें 2 तरह की टेस्टिंग्स होती हैं. आई डोंट, अब मेरे को अच्छे से याद नहीं है बस मेरे को ये था कि हाँ मेरे को अपनी आंसर शीट आपको सामने प्रेजेंट करनी है कि हाँ आप कैसे कर सकते हो, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो. तो मैं आपको दिखा रही हूँ. तो ये आप लोग पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. स्टेट द फैक्टर्स दैट कैन बी कंसीडर्ड बाय द फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो स्टेट द स्पेसिफिक दैट कैन बी इंक्लूडेड फॉर सच टेस्टिंग. डिजाइनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिटर्मिनिंग फॉर टेस्टिंग. गलत है, इन्होंने गलत कर दिया मेरा.
इन सिलेक्टिव स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम पॉपुलेशन, ये मैंने हाई वैल्यू ऑफ आइटम और की आइटम्स इन सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। जब हम ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, हमें क्वेश्चंस आते होते हैं, आंसर्स आते होते हैं, बट जब हम लिखने लगते हैं ना, हमें पॉइंट्स ही याद नहीं आते। जैसे ये कि हाई वैल्यू ऑफ आइटम्स है, अब मेरे को अब नहीं पता कि मेरे को ये याद कैसे आया होगा। लाइक ये देखो, स्पेसिफिक आइटम्स आर सिलेक्टेड, देन आई रिटन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स आर इवेल्युएटेड। सो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये उस पॉइंट पे रिमेंबर करना कि हाँ लिखना क्या है। सो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप बार बार रीड करो। मतलब अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। इफ़ यू हैव टाइम देन यू, आई थिंक यू शुड डू राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, हर चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको 2-3 बार रिवाइज करो। ठीक है जी, अपने मॉक टेस्ट दो। मतलब मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक। मॉक टेस्ट दो, टेस्ट पेपर्स दो, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करो। और जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चंस नहीं रीड करने, वो मतलब क्वेश्चंस रीड करने हैं, बट उनको रट्टा मत करो, क्योंकि हर बारी क्वेश्चन सेम नहीं आते ऑडिट में। ऑडिट में हमेशा कुछ यूनिक पूछते हैं, हमेशा कुछ अलग पूछते हैं, बट आप आंसर्स देखो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट कि आंसर्स को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स। ऑडिट में बुलेट पॉइंट्स यूज करो, ओके, लाइक कीवर्ड्स लिखो। गेटिंग माय पॉइंट। प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करो, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन। वैसे मेरी नीट एंड क्लीन नहीं है, आई नो। रट्टा मत मारो, आप ऑडिट को समझो। वैसे कुछ बच्चों का रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप रट्टा भी मान लो। कुछ कुछ आंसर्स में रेलिवेंट टर्म्स लिखो। यस, आगे बताते हैं हम कुछ। अमाउंट्स एक्सीडिंग मटीरियलिटी, मतलब पता नहीं क्यों मेरा गलत है, बस मेरा एक ये भी गलत है आई थिंक। तो इन्होंने रेड लाइन क्यों की है नीचे, आई डोंट नो। बट इन दिस क्वेश्चन 4 में से आई गॉट 1 मार्क। ठीक है जी। नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड 4th का बी। एज यू कैन सी, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सारे क्वेश्चंस में केस स्टडीज ही, थ्रू केस स्टडीज ही पूछा गया है। बट पेपर वॉज वेरी ईजी। अभी मेरे को क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा है, बट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस पेपर, दैट पेपर वाज सो ईजी, बिकॉज इसमें बहुत बेसिक चीज़ें पूछी हुई थी। बट येस, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु वॉज expecting that they will secure an exemption, but they got only 40 marks. They were passed at the border line. मतलब इन मेरे अटैम्प्ट में तो ये हुआ था कि हाँ बच्चे सिर्फ 40 मार्क्स आए, मतलब बहुत सारे बच्चों के सिर्फ 40 थे, ना वो फेल थे और ना उनके 40 के ऊपर थे। और वो एग्जाम, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन 45 मार्क्स, समथिंग लाइक दैट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली 40 मार्क्स. Mr. Ali is the principal auditor of OP Limited. There are several divisions. They are asking Ali should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence that the work of other auditors is adequate for the principal auditor's purpose in the context of his assignment. So yes, in this question I have written about. इस क्वेश्चन में मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने पहले इसको स्टार्टिंग में एज अ केस स्टडी ही रिप्लाई करना शुरू किया है. द प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पस अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन शुड गाइड अबाउट द रेगुलेटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट. आई थिंक ये बहुत बेसिक है कि हाँ जब ऑडिटर ने कुछ करना है, ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर ने मतलब एविडेंस को देखने के लिए, तो मतलब अब मेरे को एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं याद और मैंने लिखा भी नहीं है. एज यू कैन सी, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो याद करने में बहुत जोर लगाते हैं, बट आई थिंक वो याद हो जाते हैं. मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थे, मेरे को स्पेसिफिकली कुछ टीचर्स का स्पेसिफिकली नहीं याद कि मैंने किन टीचर्स का देखा था कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ. बट हाँ, मैंने यूट्यूब पे भी मैराथन्स देखी थी लाइक फॉर सम स्पेसिफिक चैप्टर्स. और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने चैप्टर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ छोड़ा हुआ था, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर छोड़ा हुआ था. सो मैं आप बच्चों को भी गाइड करूँगी लाइक जिन्होंने सिलेबस किया है, दैट इज़ वेल एंड गुड. बट जिन बच्चों ने और बाकी के 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए और वो ऑडिट की वजह से अपना ग्रुप नहीं दे पा रहे हैं, बट दे कैन डू इज लाइक ऑडिट में 11 चैप्टर्स आई थिंक है ना. अगर हम फर्स्ट वाले को 11 के साथ मर्ज कर दें, दे आर आई थिंक वो दोनों चैप्टर सेम है, तो हमारे पास 10 ही चैप्टर बचते हैं. अगर आप बहुत इजीली 5 से 6 चैप्टर्स भी करके जाओगे, बिकॉज ऑडिट में सभी चैप्टर्स में जो उनकी एग्रीगेट है, जो उनका एवरेज वेटेज है, वो
इक्वल सी ही बनती है। अगर आप 5 से 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाओगे, लाइक you know each and everything from those 6 chapters or 7 chapters, you can score easily 50 marks. Easily, I will say very easily. No need to worry if you are okay. I think ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी है। सो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अबाउट परचेज मेड अंडर स्टेटमेंट और देयर इज नो अंडर स्टेटमेंट फॉर दिस पेपर इज बहुत ईजी है। वेयर वट आर द एनालिटिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस। सो ये क्वेश्चन में मेरे को 0 मार्क्स मिले हैं। यस, 4th के डी में मेरे को 0 मार्क्स मिले हैं। ये क्वेश्चन भी ना पुराने RTP एंड MTP में से पूछा हुआ था। यस, पास्ट ईयर पेपर्स में RTP MTP में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा था। आई डोंट नो, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दो अलग अलग केसेस थे। अब मेरे को याद नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस स्टूपिड आंसर टू ऑल ऑफ यू। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये तो आपने लॉ में भी पढ़ा होएगा। सो आई विल लेट मी सी, दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड और no, they are not asking this question. They are asking state the provisions of section 53 of with reference to shares issued at discount at company fail to। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले ये लाइन रीड कर सकते हो पेपर में, so that you will get an idea कि what they are asking, then you can read this lines। Getting my point? बाकी सभी बच्चों का अपना अपना होता है। मेरा ये होता है कि हाँ, सबसे पहले ये लाइन पढ़ लो, then you will get an idea कि क्या पूछा है। सो सेक्शन 53, एज यू ऑलरेडी गेट एन आइडिया दैट दे आर आस्किंग अबाउट सेक्शन 53 स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो इन दिस आई एक्सप्लेन द स्वेट इक्विटी इन द गिवन केस व्यू ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बता दिया कि व्हाट आर द स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द इशू दैट आर इशूड टू द एम्प्लॉय इन कैश और इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। नो हाउ शेयर इशूड मीन्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस। मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपको बुक वाली लैंग्वेज हमेशा नहीं रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। लाइक ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे फेटर्निटी में, CA फेटर्निटी में, कि हाँ रट्टाफिकेशन चाहिए, एज इट इज़ सेम आंसर चाहिए जो बुक में लिखा हुआ है। नथिंग लाइक दैट। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मेरे को भी कुछ आता जाता नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए मैंने कि हाँ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर हम नहीं करें, अगर हमने पे कर दिया तो 12% लग जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। 1 नंबर मिल गया उसका। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट द डिस्काउंटेड टू द क्रेडिटर्स। ये बहुत मतलब आई थिंक दिस ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ, इफ देयर इज अ डेट रिकंस्ट्रक्टिंग स्कीम एंड इन दिस क्वेश्चन 5th का A पार्ट आई गॉट 3 मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 4। लेट मी सी, येस 5th का A में आई गॉट 3 मार्क्स, आई गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। Next I attempted 5th का C. In this they are asking about choose about 5 fundamental principle. I think this question is always asked. अभी आप recent attempts में भी ऐसे ही इन क्वेश्चन, ये जो 5th का C पार्ट होता है इसमें हमेशा ये बोल देते हैं कि इसमें 1 लाइन आंसर देना होता है, 1 लाइन सिचुएशन देनी होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ये सबको आता है। ठीक है जी, ये मैंने इसमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बिकॉज कभी कभी पता नहीं होता एग्जामिनर के मूड के बारे में कि हाँ वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। मैंने ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिख दिए, फिर आई थिंक मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया है। नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्जेक्टिविटी इज़ वायलेटेड एज ए सिस्टर इज़ पार्टनर। ठीक है जी, ऐसे। सो नेक्स्ट 5th का D, निधि कंपनी का मैंने आपको बताया कि हाँ ये क्वेश्चन RTP MTP में May 24 में आई थिंक मेरा क्लियर, मे बी May 24 में मेरा क्लियर हुआ है। तो मैंने निधि कंपनी का सुबह सुबह ही पढ़ के गई थी, क्योंकि मैंने ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर नहीं किया हुआ था। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ वाला चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था, देखा ही नहीं हुआ था। तो येस, मैंने ये सुबह सुबह रीड किया था तो आ गया। आई थिंक ये मेरा लक है, आप सबका लक भी काम करे, ठीक है, मेरी तरह। सो येस, ये मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया था। मेरे को पता है मैंने यहाँ पे इतने परफेक्ट आंसर नहीं लिखा, बट मेरे को जितना याद था मैंने लिख दिया। इसमें मेरे को 3 में से 2 नंबर मिले हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आई अटेम्प्टेड 4th का B। उन्होंने बताया कि PP ही में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मेरे को ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था, बट मैं लास्ट में मैंने सोचा वाई नॉट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
तो मैंने ऐसे ही कुछ भी, बट ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आरटीपी एमटीपी में था, यस क्योंकि मैंने देखा था ये सुबह, बट मेरे को याद नहीं रहा। एक्सपेंसिव रिलेटेड टू रिकरिंग वेजेस, तो इनमें इन्होंने मेरे को 4th के बी में, ये 5th का बी है आई थिंक, यस मैंने क्वेश्चन में ना मार्किंग गलत कर दी। लाइक बहुत सारे बच्चे ना पेपर के बाद वीडियोज़ में कमेंट करते हैं कि हाँ हमने ना क्वेश्चन की मार्किंग गलत कर दी, तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? येस गाइज, यू विल गेट ए नंबर। अब घबराओ मत, ये 4th का बी है, बट मैंने देखो ये क्या लिखा है, मैंने लिखा है 4th का बी, बट इन एक्चुअल दिस क्वेश्चन इज 5th का बी, सो आई गॉट 1 मार्क्स 4 में से। नेक्स्ट दे आर आस्किंग अबाउट प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी इजी। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांसेस प्रोविजन कांट बी क्लासिफाइड एज एनपीए बट टू बी कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड एसेट्स शुड बी। एनपीए में बताया है कि हाँ इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वेश्चन भी रेपिटेटिव था, ये क्वेश्चन भी हमारे आरटीपी एमटीपी में दिया हुआ था गाइस। उसके बाद मैंने फर्स्ट का ए अटेम्प्ट किया है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ एक बारी, ये EQCR वाला। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस दैट दिस वीडियो बहुत लंबी जा रही है भाई, बट यस अब तो आई थिंक एक ही क्वेश्चन रह गया। सो दिस फर्स्ट वन, ये उन्होंने मेरे को क्वेश्चन में शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैंने ऑडिट प्रोग्राम यहाँ पे रीड किया एंड मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम जनरली भी वाइल प्रिपेयरिंग एंड मेंशन द मैटर्स दैट शुड जनरली बी प्रिपेयर्ड वाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। आप लोग ना ये केस स्टडीज़ देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या पूछा हुआ है। लास्ट लाइन रीड करो, बहुत ईजिली अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम में मैंने लिख दिया, मेरे को आता नहीं होएगा, मतलब आता था बट पेपर में जाके हमारे माइंड में से स्किप हो जाता है कि व्हाट टू राइट, हम फंबल करने लग जाते हैं पेपर में। सो ये लिखा है, मेरे को 1 नंबर मिला है। ये देखो मैंने ये तीनों पॉइंट्स में मेरे को नंबर नहीं मिला, बट मैंने ऊपर ये जो लिखा है CAP इज़ वन ऑफ द ओपिनियन ऑडिट प्रोग्राम विल नॉट बी यूजफुल फॉर द इज़ करेक्ट, तो इसका ही मेरे को 1 नंबर मिल गया। सो इन फर्स्ट का ए आई गॉट 4 में से सिर्फ 1 नंबर। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट का बी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये मेरे को अच्छे से आता नहीं था, बट लाइक ये तो हमें पता होता है ना कि हाँ कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, तो मैंने ये ऐसे जो हमें अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा है तो मैंने उस हिसाब से अटेम्प्ट कर दिया। तो फर्स्ट का डी है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट भी है आई थिंक, और बहुत ईजी भी था, मेरे को तो बहुत ईजी लगता था ये कि हाँ ये ऑडिट फाइल है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, कब तक ये रिट वो रखने हैं साथ, ठीक है 60 डेज तक रखने हैं और शुड नॉट बी डन, और उसको असेंबल कैसे करना है आई थिंक, है ना। असेंबलिंग ऑफ ऑडिट फाइल इंक्लूड सॉर्टिंग और कलेक्टिंग डिलीटिंग, और ये तो अच्छे से रट्टा मारा हुआ था। 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन द गिवन केस। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में मेरे को मिले हैं 3 में से 3 नंबर से, यस। 6th का CA 580 रिप्रेजेंटेशन है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, ऑडिटर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड अदर ऑडिट 6th का CA ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड अदर ऑडिट, इसमें मेरे को 2 नंबर मिले हैं, यस नहीं इसमें नहीं मिले। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड अदर ऑडिट पर्सनल नेचर टाइमिंग मतलब गलत है, बट मैंने अटैम्प्ट करने की उसको कोशिश की है कि हाँ मैं उसमें से अगर सो येस दैट्स इट अबाउट माई आंसर शीट। और मेरे को MCQs में मेरे को मिले थे 24 मार्क्स, 2 मार्क्स की मेरे को ग्रेस मार्किंग मिली थी। सो आई थिंक ये वीडियो तो बहुत लंबी चलेगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो ऑडिट के रिलेटेड, किसी और के सब्जेक्ट और किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड, येस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम पे, कॉमर्स विद आर्टिस्ट गिनी। सो येस यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स विद आर्टिस्ट गिनी on Telegram for more videos, for like if you want to contact me from now onwards I will try to share for CA students also. So yes, अगर आपको ऐसे रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल कॉमर्स विद आर्टिस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो अगर मैं 19 मार्क्स से 56 मार्क्स तक आ सकती हूँ देन आई एम डैम श्योर दैट आप एग्जाम्शन तो ला ही सकते हो। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स करके सारे चैप्टर्स करके जाने, आप यू कैन ईजिली डू 5 to 6 चैप्टर्स, बट वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। आप अपने कमेंट में डाउट्स लिखो, मैं आपका हर एक रिप्लाई करूँगी। अगर सही तरीक़ों से पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, ठीक है जी। सो येस वंस अगेन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and share with your friends and subscribe my channel Commerce with Artist Gaming. Thank you so much everyone for watching this video.